ہم نے آپ سے عبد المنان صاحب سے گزارش کی ہے جو NLP ٹرینر ہیں اور لائف کوچ ہیں کہ ہم ہمارے نوجوانوں کو اسی عنوان پر مخاطب کریں. جناب عبد المنان صاحب. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ونس اگین اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ منڈے کلاسز کو ایڈریس کرنے کا. اور یوزلی میں بہت ایکسائٹیڈ رہتا ہوں. منڈے کلاسز از ویری پرو ایکٹیو آڈینس. میں جو ہے نا بار بار رضا بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی آڈینس ماشاء اللہ اٹس گڈ ان ٹرمس آف کوانٹٹی اینڈ کوالٹی. اور ماشاء اللہ ایون دو اٹس کوانٹٹی از گڈ 79-80 کا بھی جو فگر ہے, بٹ the usual standard of Monday classes is more higher. Probably رمضان بھی ہے اور تراویح کا بھی ٹائم ہے, so it's a bit challenging at these times. Anyways, inshallah whoever is there اور جو باذن اللہ اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ کو رکھ دوں کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں, جو پینڈیمک جو ہے نا ایک دم تباہی مچا کے رکھا ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ جو ہے نا ہم بات کریں گے. جسٹ ابھی میں یہ سیشن شروع کرنے سے 5 منٹس پہلے ہمارے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار, یعنی لاسٹ 2 months کے اندر جو ہے نا لاسٹ منتھ ہمارے ایک پھوپھو کا انتقال ہوا, اور اس سے کچھ مہینے پہلے اور ایک پھوپھو کا انتقال ہوا, اور ابھی چند تھوڑی دیر پہلے جس مجھے اپڈیٹ ملا کہ ہمارا اور ایک کلوز ریلیٹیو اور ان کی پوری فیملی جو ہے نا کووڈ سے انفیکٹ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ لوگ کو جو ہے نا صحت عطا فرمائے. تو اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے, بیکاز دیٹ از آف کورس ریلیٹڈ ٹو دی پروڈکٹیوٹی اینڈ دی کرنٹ سچویشن, اور جو حالات جو ہے نا ابھی ہمارے اس ملک میں جو ہے نا چل رہے ہیں. تو اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے. وی ول لائک کائنڈ آف 50% جو ہے ہم وی ول ٹاک اباؤٹ پروڈکٹیوٹی یا پروڈکٹیو رمضان کے ٹاپک پر. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ویل ڈو اور بیسٹ. ٹائم رہا تو یہ ٹاپک کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں اسلامکلی, اس کو جو ہے نا ہم کیسا ڈیل کر سکتے ہیں ایز مسلم اسپیشلی, اینڈ دیٹ از آف کورس آلسو ریلیٹڈ ٹو پروڈکٹیوٹی باذن اللہ. سو ویل بی آن دی ٹاپک, ہے نا. ٹھیک ہے رضا بھائی, ٹاپک کو ہم بریچ نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ. All right, so with that said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quickly, the question is, what do you understand by productivity? Productive Ramzan hum baat karne ja rahe hain. So what is the meaning of productive? Can you just type in the comments? آپ کیا سمجھتے ہیں کہ productive کا کیا مطلب ہے؟ Google search not allowed, huh? Okay, quickly. جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا پروڈکٹیو کے کیا مطلب رہیں گے. میکسیمم یوٹیلائزیشن, فانٹاسٹک. غزوان, اوکے. ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ٹائم, فروٹفل. سارا, اوکے, ویری گڈ. گڈ آؤٹ کم, اوکے, ویری گڈ. کریٹیو اینڈ پراپر یوز آف ٹائم, اوکے. اوکے, واٹ ایلس. اچھا, پروڈکٹیو میں مجھے ایک کمپلیٹ یوٹیلائزیشن آف یور ایبلٹیز, فانٹاسٹک. yesterday also had a session, یہ ٹاپک پہ تھا, تو بہت ہی مزہ آیا. میں پروڈکٹیو کی میننگ پوچھا تو لوگ انوکھے جو نا جواب دیے اس میں, اور ایک انوکھے جواب میں جو مجھے دکھا وہ کہ جو نا پروڈکٹیو کے اس میں کچھ لوگ یہ ڈالے کہ it is about creative. Yes, it is creative, but productivity doesn't exactly means creative. تو ٹھیک ہے, ایک آیا یہاں پہ آنسر یسرا, productive means which is beneficiary in دنیا and آخرت as well. Fantastic, big hand for یسرا. تو پروڈکٹیو, اچھا ایک ہو گیا پروڈکٹیو, give maximum output with less time and resources. شاہد, fantastic. minimum input سے maximum output لانا, that is actually productivity. Fantastic. But what is a productive رمضان, یا پھر مسلمس کے لیے productivity کیا ہے؟ what is a productive Muslim? Define a productive Muslim. Okay, come on, to be able to get best results. Okay, fine, ٹھیک ہے, productivity کا ہے. but میں بولوں کہ what is a productive Muslim? What is a productive Ramazan? یا مسلمس کے حساب سے productivity کا definition کیا ہے؟ come on, anyone.
Maximum utilization of Ramadan. Okay, very good, Sayyid Shad. What else? Who else? Come on, let's build up the tempo. Being forgiven completely by Allah, mashallah, Khusia, very good. Being active, utilizing to the utmost. Managing dunya and akhirat, fantastic. Being productive Muslim is about coming up with new dimensions every day. Okay, that's very philosophical, very good. Most utilizing time, akhirat mein ajar, Tahira, fantastic. Sarah, to be able to reap all its benefits. All right, benefiting oneself with little action, Aditya. Asking forgiveness. Okay, fantastic. Here we go. قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے, پیسہ دیا ہے, وقت دیا ہے, ریسورسز دیا ہے, اس سے اپنی آخرت بنا. So yes, productive means minimum input and maximum output, and productive Muslim means کہ اس کے ہر کام سے اس کی جو ہے نا آخرت بنے, اس کے ہر عمل سے وہ جو ہے نا اللہ سے قریب جائے اور جنت سے جو ہے نا قریب جائے. یہ پروڈکٹیو مسلم کا جو ہے نا ڈیفینیشن ہے. ہمارا ہر عمل ہماری جو ہے نا آخرت میں ہمارا گھر بنائے, تو وہ الٹیمیٹلی اور میکسیمم جو ہے نا ہمارے لیے پروڈکٹیو ہے. ادروائز سمجھے آپ ایک کام کر رہے ہیں, بظاہر دنیا کے اعتبار سے بہت زبردست ہے, منیمم ایفرٹس میکسیمم آؤٹ پٹ مل رہا ہے, لیکن اس سے جو نا آپ کی آخرت ہی نہیں بن رہی. آپ بزنس کر رہے ہیں, سود کا کاروبار کر رہے ہیں, کم ایفرٹس میں آپ زبردست جو ہے نا پیسہ کما رہے ہیں, منیمم ان پٹ میکسیمم آؤٹ پٹ, یو پروڈکٹیو, بٹ دیٹ از ناٹ اے پروڈکٹیو مسلم. وہ ایز اے مسلم دیٹ از ٹوٹلی ان پروڈکٹیو. آپ اپنی جو ہے نا آخرت تباہ کر رہے ہیں. یو گیٹ دا پوائنٹ. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, بہترین خیرات کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. نیت میں ریاکاری ہے, نیت میں دکھاوا ہے, نیت میں لوگ دیکھ کے واہ واہ کہنا ہے. دیٹ از ناٹ پروڈکٹیو. وہ آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں ہے. سو ایز پروڈکٹیو مسلمس, نیت صحیح رہے, وہاں پر کام ایسا رہے جس سے جو ہے نا آپ کی آخرت بنے. دیٹ از دی الٹیمیٹ پروڈکٹیوٹی. دیٹ از دی الٹیمیٹ پروڈکٹیوٹی فار اے مسلم. اور رمضان کی پروڈکٹیوٹی, یعنی یہ رمضان کا جو گولڈن پیریڈ ہے, جس میں ایک فرض 70 ٹائمز جو ہے نا ایک فرد کا جو ہے نا آپ کو اجر مل رہا ہے, یو گیٹ اٹ لائک 70 ٹائمز آپ کو ریوارڈ ہو رہا ہے, تو اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا. نوافل کا جو ہے نا فرض کے برابر جو ہے نا اجر ہے, یہ ٹائم کو جو ہے نا میکسیمم یوٹیلائز کرنا, دیٹ از لائک اے پروڈکٹیو رمضان. ہاں, نارمل ڈیز میں آپ جو ہے نا معاش کے پیچھے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اٹس گڈ انف, اٹس فنٹاسٹک, اچھی چیز ہے, رزق حلال کما رہے ہیں, لیکن I mean, in رمضان آپ یہ چیزوں میں, اور پھر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے رزق حلال کے لیے محنت بھاگ دوڑ نہیں کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, but probably you can reduce a bit time for those things and increase more time for جو ہے نا making your آخرت, because this is the golden period. آپ تصور کریں کہ جو ہے نا آپ ایک بازار میں جا رہے ہیں, بگ بازار میں یا جیو مارٹ میں, whatever it is, you go to the market, big basket, whatever it is, اور وہاں پر جو ہے نا آپ ایک آئٹم خریدتے ہیں, آپ کو جو ہے نا اور 70 جو ہے نا وہ لوگ دے دے رہے ہیں. It is an offer period. آپ بولیں گے دس از دی گولڈن ٹائم, آپ سب جو ہے نا وہاں پر خریدنے کے لیے جائیں گے. یہ پرابلی حیدرآباد میں اپنے پاس ڈی مارٹ رہتا, وہاں پہ ایک خریدے تو 70 دے رہا ہے, لائک انسین. اوہ 70 پیسز دے رہا ہے بھائی. آپ ایک صابن خریدو 70 مور 69 اور فری میں دے رہا ہے, پورے ٹوٹ پڑیں گے وہاں پہ, اور دوسرے سب کام چھوڑ دیں گے. آپ بولیں گے چھوڑو یار, پڑھائی بعد میں کر لیں گے, یہ پہلے ایک زبردست مل رہا ہے, ایک دن جو ہے نا آفس میں لیو ڈال دیں گے, یہاں پہ بہت اچھا جو ہے نا ریٹرنس آئے. وہی یہ گولڈن پیریڈ ہے رمضان. اور ایز productive Muslim, to make this the most productive Ramadan, this is the golden opportunity, اور اس کو maximum utilize کرنا, یہی جو نا ultimate productivity ہے, and that is the ultimate smartness. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں بإذن اللہ. تو with that, I hope everybody is clear with the word productive and productive Ramadan or productive Muslims. Any question over here quickly? اگر ہے تو ٹائپ میں ڈالیں, otherwise ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ایک آنسر آیا ہے ارشیا, بیسٹ یوٹیلائزیشن آف رمضان بائی ریڈنگ قرآن, نماز اینڈ بیسٹ اعمال. فنٹاسٹک. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. with that said, okay, it's crystal clear. جزاک اللہ محمد. Okay, so next point is, I hope you have the pen and papers with you, ہے نا, ہے تو نوٹ ڈاؤن کریں, اگر نہیں رہا تو آپ کے موبائل میں, لیپ ٹاپ میں, at least write it down.
You have to set your goals. आपको अपना goal set करना बहुत important है. Because if you don't set a goal, if you don't have a plan, you will go wayward. कितने लोग यहाँ पर जो है ना फुटबॉल खेलते हैं, लड़के, guys, how many people play football? Come on, just write I, come on. I know a lot of people they play football. I am very passionate about football. और अगर मोबाइल में खेलते हैं, फीफा खेलते हैं, फीफा 2020 खेल रहे हैं, प्ले स्टेशन में खेल रहे हैं, तो भी डाल दीजिए, नॉट एन इशू. तो we play football and the guys who know that when you play football, अगर goals ही नहीं रहे वहां पर, without goals आप अगर खेल रहे हैं, उसमें मजा आता है ये नहीं आता है, या मजा थोड़ा रहता है. और उसके बरखिलाफ अगर आप गोल सेट करते हैं, दोनों टीम से अपना अपना जब गोल सेट करते हैं, तो इज द फन मोर, उसमें मजा ज्यादा आता है ना. ऑब्वियसली, अरे भाई गोल सेट है, वहां पर जाके किक करो, शॉट मारो, गोल होते कैसा सेलिब्रेट करते हैं, ये आई मीन लाइक यू आर लाइक सेलिब्रेटिंग लाइक क्रेजी. मतलब वो आदमी उस वक्त में नशे में रहता, समझ में नहीं आता उसको, कोई शर्ट निकाल देता है, कोई कुछ निकाल देता है, वो कोई पुकारना शुरू करता है, कोई अजीब अजीब जो है ना अपने नमूने किस्म के सेलिब्रेशन के जो है ना एक्शंस रहते हैं. हम देखते हैं टीवी वगैरह में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आदमी हैं, जैसा एक गोल होता, एक जुनून के जैसा, एक पागलपन उनके ऊपर, एक नशे के जैसा होता है, बिकॉज द मोमेंट दे अचीव द गोल्स. और बट द पॉइंट इज, इफ देयर इज अ गोल पोस्ट, राइट, गोल पोस्ट रहा तो आप गोल मारेंगे तो आप सेलिब्रेट करेंगे. वही मामला हमारे लाइफ में हर चीज का है. देयर हैज टू बी अ गोल, देयर हैज टू बी अ प्लान. अगर आपका गोल नहीं है, इफ देयर इज नो प्लान, दैट मींस द डिफॉल्ट प्लान इज टू फेल. इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल. तो प्लान बनाना जो है ना जरूरी है. सो हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली सेट देयर गोल्स? कम ऑन. I, Cristiano Ronaldo celebration style. Sayyed Shad, fantastic. Big hand for Sayyed Shad. Okay, how many people have actually set their goals? Football के goals नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब रमजान के goals की बात चल रही है. Okay, fantastic. Raisa, Sara, Wafid, Mufid, Farah, fantastic. Salma, fantastic. Or come on, we have like 110 people. How many? 115, mashallah. So okay, Safa, alhamdulillah, so fantastic. So many people have set their goals. Now the point is, if you have set your goals, you know where the fun is, right? Goals जब आप बनाते हैं, वहां पर जो है ना आपको मजा आता है. मैं एक स्क्रीन अभी आपके साथ शेयर करूं, just a second. Probably you have seen this a lot of times, but it's worth sharing again. Okay, मैं अपने और एक आईडी से शेयर करूं. Is everybody able to see the screen? तो दिस इज रमजान प्लानर और वट एवर इट इज, ये जो ना हमारे भाई जो है इस्तेमाल कर रहे हैं. सो आई हैव टेकन फ्रॉम हिम एंड दिस इज रियली रियली पावरफुल. ये आपको जो है दिन का डायरेक्शन देता है कि फजर की नमाज है, कि तकबीर उला से जो है ना आपकी फजर की नमाज हो रही है नहीं हो रही है. अभी लॉकडाउन है, नमाज घर में हो रही है, तो दैट इज समथिंग एल्स. और लेडीज हैं, लड़कियां हैं, तो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लें, जैसा अज़ा होती यू प्रे इट, डोंट डिले. और फिर फर्स्ट रो में पढ़ने का जो अज्र है, फिर नमाज के बाद के जो अस्कार हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, नमाज के बाद की जो सुन्नत है, तो ये पूरे चीजें जो है ना आप डेली कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको आपको जो है ना टिक करना है, चेक बॉक्स करना है. जस्ट इन केस इफ यू डोंट हैव, अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं रजा भाई को शेयर कर दूंगा, एंड ही विल शेयर इट विद यू ऑल बिइज़्निल्लाह. तो ये आप डेली का जो ना ये आपके टारगेट्स होते हैं. और इसमें आप नीचे जाएंगे तो फिर कुरान के भी जो है ना टारगेट्स आपको मिलते हैं. तफसीर है, और कुरान आप मेमोराइज, कुछ सूरह याद है तो उसको रिवाइज करना है, कुरान अरबिक है, मीनिंग से है, मेमोराइजेशन वगैरह. और उसी तरीके से जो है ना दुआओं के ताल्लुक से टारगेट्स हैं. इसको आप चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं. इधर यू कैन प्रिंट इट आउट और यू कैन ड्रॉ इट, आप अपने हिसाब से इसको जो है ना मॉडिफाई कर ले सकते हैं. तो इस तरीके से गुड हैबिट्स बनाने का आप नीचे जनरल में डाल सकते हैं. गुड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स टू रिमूव, यू कैन क्रिएट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. ठीक है ना. तो इस तरीके से एक आपका प्लान और जो है ना गोल होना जरूरी है. So if the goal is there, आप जो ना फोकस्ड रहते हैं, and once you achieve it, the fun is there, उसका जो ना मजा होता है. All right, any questions over here? Goal setting, task based काम करने में कोई सवाल है यहाँ पर? Okay, एक comment आया है, it's fun when we achieve it. Yes, alhamdulillah it is. We have set the goals but not accountable. Very good, Sayyed. अभी हम उसकी तरफ आ रहे हैं इंशाल्लाह. But till now, any goals, any questions over here? Any questions? Goal setting वगैरह इसमें? If not, आगे बढ़ते हैं. Okay. So अब next जो हमारा point है, और उसको जो है ना सैयद शाद अभी पहले जो है ना उठा दिए हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है. Hold on. Yeah, is it necessary to set a goal? Of course it is. If you don't set a goal, आपको जो है ना कोई एक kind of pressure नहीं रहता, ये जो है ना कुछ अचीव करना है, आप इजी गोइंग हो जाते हैं. लैक्सिटी जो ना आपके अंदर, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक्सिटी, इजी गोइंग मिजाज हो जाता. अरे आज
तो कुरान हुई नहीं हुई कोई मसला नहीं, बट अगर आपका गोल सेट है तो आप नहीं मेरा डेली एक पारे का जो है ना गोल सेट है, डेली जो है ना मुझे आधा पारा विद ट्रांसलेशन पढ़ना है, मेरा गोल आज का मेरा गोल कंप्लीट नहीं हुआ, एक बेचैनी रहती है आपके अंदर, आप उसको फुलफिल करते ही, अदरवाइज क्या होता है फिर अपने जो मुबारक चीजें हैं मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह जो है ना उसमें टाइम निकल जाता है. Alright, I hope you get the answer. So the next point is introspection, self evaluation. एहतसाब करना जरूरी है. यूजुअली होता है कि हम गोल्स जो है ना सेट करते हैं, उसके बाद फिर इसी तरीके से जो है ना दिन निकलना शुरू हो जाते हैं, एंड देन यू फॉरगेट, अरे भाई मैं गोल भी सेट करा था क्या, मंथ एंड में याद आता, बाज़ वक्त तो याद भी नहीं आता, नेक्स्ट रमजान में याद आता, अरे लास्ट रमजान में गोल सेट करा था अभी तक नहीं हुआ, बल्कि गोल्स आर वेरी पावरफुल. I'll just share you like my own example, not for showing off, but Allah Taala माफ करे मुझे, just so that you get the motivation also. और कितना पावरफुल रहता है ये. एक टाइम जो है ना मैं गोल सेट किया था कि सूर्य कहफ जो है ना मुझे याद करना है एक रमजान में, क्योंकि एवरी वीक हर जुमा जो है ना हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन कई वक्त क्या होता है कि जुमा आता और निकल जाता, टाइम नहीं रहता हमको पढ़ने के लिए, बट इफ आई मेमोराइज इट, मैं जो है ना एवरी वीक इसको जो है ना ये कर सकता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह उस रमजान में सूर्य कहफ को मैं मेमोराइज किया. फिर अल्हम्दुलिल्लाह और एक बार मैं टारगेट ये सेट किया कि ये रमजान में जो है आई विल बी मेमोराइजिंग दोस दुआज, जो वितर में जो दुआज होते हैं हरम शरीफ में, मक्का मदीना वगैरह में जो इमाम करते हैं, एंड प्रीटी मच जो है ना काफी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह उस रमजान में मैं मेमोराइज किया. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ मेमोराइजिंग दोस दुआज वो हर साल अब जो है ना मुझे रमजान में वितर में जो है ना वो काम आते हैं. तो इस तरीके से जो है आप जो गोल सेट करते हैं उसको आप अचीव करते हैं. और अपना हाँ जो पॉइंट आ रहा था कि वीकली इंट्रोस्पेक्शन, वीकली रखें या 3 दिन में एक बार रखें, या अगर आप डेली कर सकते हैं आप डेली इंट्रोस्पेक्ट जो है ना करें, बट इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ इवैल्यूएशन या सेल्फ चेकिंग, या अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन अपना उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप जो है ना कोई एक पार्टनर को रखें. आपके कोई भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, या अगर आप पेरेंट्स अगर कोई सुन रहे हैं तो अपना आप बच्चे भी हो सकते हैं या स्पाउस हो सकते हैं. एक दूसरे को जो है ना रिमाइंड करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें, क्योंकि हदीस में आता है कि मोमिन मोमिन का है ना है. सो यू चेक ईच अदर, यू सी ईच अदर, यू रिमाइंड ईच अदर, फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्र, या दहानी करो, उसमें जो है ना फायदा होता है. ठीक है ना. तो उस तरीके से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो गया. नाउ वी विल कम टू द बिग प्रॉब्लम, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस. प्रोडक्टिवली आप जो है ना फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिवली जो है ना आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से जो है ना डिस्ट्रैक्शंस भी जो है ना आते हैं. यानी देयर आर द गुड प्लांट्स जो हम जो है अच्छे बीज डाल रहे हैं, आम का फल लग रहा है, जाम का लग रहा है वगैरह, लेकिन वीड्स भी उग रहे हैं, तो वीड्स को निकालना भी जो है ना बहुत जरूरी है. सो विल टॉक अबाउट द वीड्स नाउ, विल टॉक अबाउट द वायरसेस. सो व्हाट आर द वीड्स, व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शंस? कम ऑन, the quick question is, come on, write in the comments. I think everybody should be able to contribute, and this is no rocket science. We are 118 over here. What are the biggest, बोलने से पहले आंसर शुरू है, biggest distractions? Mobile, social media, phone. A big time waster is mobile. Okay, inconsistency, family parties. Yes, family parties. बिल्कुल. Social media, WhatsApp, games, online games. लड़के खास तौर से, PUBG, फौजी, and fictional books. Say, it's not the right time to read fictional books, is it? And vlogs, या YouTube पे जो है ना टाइम जाया करना, ध्रुव राठी को देख लेते बैठना, कपिल शर्मा को देख लेते बैठना, फेसबुक, thinking you have achieved a lot. माशाल्लाह, what a brilliant point. Self satisfaction, भाई मैं बहुत कर लिया ऑलरेडी, बट डिस्ट्रैक्शन में तो नहीं है, बट इट्स अ काइंड ऑफ आल्सो अ डीमोटिवेटर, समझिए, मतलब इट लिमिट्स योर परफॉर्मेंस. म्यूजिक, यस, चैटिंग, चिट चैटिंग, व्हाटएवर. तो ये सारे चीजें. अच्छा, इसका प्रेडोमिनेंट डिवाइस कौन सी है वो जिसके थ्रू ये पूरे चीजें हो रहे हैं? गेम्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, चैटिंग, ये पूरा किसके जरिए हो रहा? शैतान. एक आंसर आया, शैतान. शैतान डिस्ट्रैक्टर है क्या? शैतान, मैं तो बोल रहा हूँ कि आज के दौर में मोबाइल ही शैतान है. वो शैतान है. पहले शैतान, मैं तो बोलता हूँ पहले शैतान दिखता नहीं था, अब शैतान दिख रहा. शैतान जो है ना अब मोबाइल की शक्ल में शैतान ऑलरेडी नजर आ रहा. हर एक के पास जो है ना शैतान है, किसी की जेब में शैतान है, किसी के हाथ, आईपीएल भी है देखो. शैतान जो है ना अलग अलग किस्मों में आ रहा है. अब उसका जो है आप जैसा, अच्छा द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, जैसा आप मोबाइल लेते 30 मिनट्स गॉन. यस, थोड़ा थके, अरे थोड़ा पीठ सीधी करेंगे, देखेंगे क्या मैसेजेस आए कोविड का, क्या लॉकडाउन चल रहा है कि क्या है, कि मोबाइल लेके रखे तक 1 hour इज गॉन. You started like 10, by 11, 1 hour is gone. You don't even realize it. ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्टर है. So what can be done? Come on, अब आप लोग ये आंसर्स बोलना चाहिए. ये इतना बड़ा शैतान है,
पहली बात तो बोले भाई रमजान में शैतान को जो है ना कैद कर देते, फिर भी उन्हें क्या करा, अपने बच्चे को भेजा, समझे मोबाइल उसका बेटा है समझो, उन्हें भी अब शैतान की शक्ल में आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, ठीक है कंट्रोल कैसा करेंगे भाई, कंट्रोलिंग का बताओ, कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, कैसा करना कंट्रोल, इसको लिमिट करना। अरे भाई हाथ में लेते एक घंटा निकल जा रहा है, क्या लिमिट करते उसको, हाँ ऑफ द नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस को, पुश नोटिफिकेशंस को निकालना है। फंटास्टिक, प्लान योर डे, फंटास्टिक, प्लान योर डे आवर बाय आवर, अच्छा फंटास्टिक। और क्या, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट उतना खास काम नहीं करता सब। फास्टिंग फ्रॉम मोबाइल, फंटास्टिक, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सलमान, फंटास्टिक। फास्टिंग फ्रॉम मोबाइल, हर चीज का रोजा रहे, मोबाइल का भी तो रोजा रहो ना। ओके, मेक अ टाइम टेबल, ओके ठीक है, गुड इनफ। सेल्फ कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, लेकिन वो सामने रहा तो वो फितना है ही है, समझो आप उसको। ओके, साइलेंट मोड, आकिफ इज अ गुड पॉइंट। मॉनिटर ऑन अ डेली बेसिस, पनिश योरसेल्फ, अरे भाई कैसा सैयद शाद लकड़ी लेके स्केल से, बस चलो आज मैं घंटा कर लिया, मारो मारो मेरे को, मारो अब्दुल मन्नान हो वैसा तो नहीं कर सकते हम। किस तरीके से पनिश करेंगे। स्विच ऑफ वाईफाई, फंटास्टिक। अब ब्रिलियंट आइडियाज दे रहे यार आप लोग, मेरे को भी इतने आइडियाज नहीं। अच्छा मैं आप लोग से इनपुट्स लिया। स्विच ऑन डाटा ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके वेरी गुड। लिमिट द टाइम, अच्छा हाउ अबाउट फंटास्टिक अब्दुल आजम मोहम्मद, यूज नोकिया 3310, देखिए मैं 105 अभी आपको दिखाने वाला था। आई हैव रिसेंटली परचेज दिस बाय द वे। distract your mind from mobile, okay, purchase Nokia double, okay, this is the point, Waqid Ghazwan, uninstall social media applications, uninstall करो यार, हिम्मत करो, come on do it now, commit it, इंशाल्लाह लिखे, हर कोई इंशाल्लाह लिखे, uninstall social media apps now, हिम्मत का काम है, राइट इंशाल्लाह नो, अभी अनइंस्टॉल करे तो शायद ये Zoom भी बंद हो जाएगा। uninstall social media apps and uninstall PUBG, uninstall IPL घीपीएल क्या है मेरे को नहीं मालूम, उसका ऐप भी रहता है क्या, यूट्यूब पेज देखते, एंड व्हाट ऑल अनइंस्टॉल, और क्या क्या करना है बोलिए। डिसेबल पुश नोटिफिकेशंस, ओके, स्लोली रिड्यूस यूजेज ऑफ मोबाइल, बासित वो करे तक रमजान निकल जाता, आप स्लोली करे करे तक, रमजान इज नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली। पबजी बैन ही थे, चलो बहुत अच्छा हुआ। और कम ऑन, इतना फास्ट कमेंट डाले तो मैं कहां से पढ़ूंगा। स्टार्ट द फील्ड वर्क एंड सर्व ह्यूमैनिटी, घर से बाहर निकलो, इफ यू टू कॉन्टैक्टेड टू पीपल, ठीक है ओके, अभी कोविड में कहां बाहर निकलना भाई। रिवार्ड योरसेल्फ फॉर नॉट यूजिंग फ्रीक्वेंटली, ठीक है, रिवार्ड किस तरीके से क्या करेंगे, इफ्तारी में पकोड़े समोसे वगैरह खाएंगे, हलीम हरीस खाएंगे। ओके व्हाट एल्स, कम ऑन, और क्या हो सकता है, अनइंस्टॉल कर दिए, और जो है पुश नोटिफिकेशंस निकाल दिए, मोबाइल निकाल दिए, डाटा को ऑफ कर दिए, वाईफाई बंद कर दिए। और अगर आपको मोबाइल को उतना यूटिलाइजेशन ही नहीं है, अपने पेरेंट्स को मोबाइल दे दिए, ले लीजिए अम्मी अबू ये मोबाइल ले लीजिए मेरा, खलास दैट्स इट, हाँ स्विच ऑफ, असरा फैंटास्टिक, स्विच ऑफ भी तो कर सकते हैं, इतना ब्रिलियंट आइडिया, देखो दिमाग में नहीं आ रहा, क्रिएटिविटी पूरी खत्म हो जा रही है मोबाइल यूज करते करते। स्मार्टफोन्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम लोगों को डम बना दे रहा है, पहले जो चीजें याद रखते थे वो भी चीजें हम याद नहीं रखते हैं। लोगों को अपना नंबर याद नहीं रहता, पूछे अरे नंबर पूछे तो भाई आपका नंबर, बोले मिस कॉल देता हूँ मैं। हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अदर एक्टिविटीज, दूसरे कामों में अपने आप को बिजी करना है, यहाँ से हटना है तो कहीं और अपने आप को मसरूफ करना है, अपना मकसद जिंदगी जो है ना अपने आप को रिमाइंड करें, याद दिलाएं। आई होप एवरीबॉडी इज नोटिंग दिस पॉइंट्स, है ना, ये अपने लिए हमारे लिए रिमाइंडर्स हैं, फज़क्किर नफ़अत ज़िक्रा। और क्या हो सकता है, समटाइम्स वी हैव फ्रेंड्स हु आर टाइम वेस्टर्स, ये भी बड़े डिस्ट्रैक्टर्स, वो फ्रेंड से भी जो है ना कट ऑफ होना है हमको, और अगर हो सकता है तो छोटे फोन पे जो है ना आ जाइए, बहुत सस्ता है, मैं रिसेंटली ऑर्डर किया, 1000 रुपए का है, 900 1000 रुपए का है, ऑनलाइन में ऑर्डर करें, इससे आपकी जो है ना आखिरत बखैर होगी बिइज़्निल्लाह। ऑर्डर करें, ऑनलाइन जाके नहीं खरीद सकते, ऑनलाइन में ऑर्डर करें, आपको जो है ना हैदराबाद में तो सेम डे 2 दिन में आ जाता, और कोविड में शायद 3 दिन महंगा, अभी भी रमजान के 15 दिन बाकी है, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, ऑर्डर करें एंड गेट इट एट होम, इसको इस्तेमाल करिए, स्मार्टफोन को साइड में रखो, ठीक है ना, और कुरान को जो है ना मोबाइल से पढ़ने की बजाय उसके मुसहफ से जो है ना आप कुरान को पढ़ें, यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल ऐसा फितना, आप कोई अच्छी चीज देखनी है भाई, यूट्यूब पे जो है ना मैं कोई अच्छी चीज देखती हूँ या देखता हूँ, बल्कि आप खोलते पॉपअप नोटिफिकेशन आता, इंस्टाग्राम पे चल जाते, वहां पे कोई फ्रेंड का देखते, वहां से कुछ और पे जंप करते, वहां से कुछ आते, वहां से जो है ना फेसबुक पे जाते, फेसबुक पे देखते अरे कोविड लॉकडाउन आने वाला है, अरे कुछ हैबतनाक खबर देखते, वहां से पूरा डाइवर्शन। इट डाइवर्ट्स यू, खत्म कर देता है, ये जो है ना तबाह कर देने वाला है। रमजान इसी तरीके से जो ना निकल जाएगा, अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको। सो डिस्ट्रैक्शंस है, और डिस्ट्रैक्शंस को जो ना हमको क्लोज करना है। फैंटास्टिक। द नेक्स्ट पॉइंट अब हम जो आ रहे हैं
وہ खास तौर से हैदराबादियों के लिए बहुत रिलेवेंट है. आप लोग ज्यादा फिक्र मत करिए, मैं गुलबर्गा का हूँ, लेकिन मेरा ससुराल भी हैदराबाद का है, तो आई एम इन द सेम बोट. ठीक है ना. आप लोग बोलेंगे भाई सिर्फ हैदराबादियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अपने आप को बता ले रहे हैं. हम भी वहीं है समझो, डेक्कन में. बाय द वे सर आपका ये तो डालिए नीचे, लेट्स सी द सिटीज क्विकली, थोड़ा और फन एंड एंजॉयमेंट. कौन सी सिटीज हैं आप क्विकली, लेट मी जस्ट नो वेयर यू आर बेस्ड एज ऑफ नाउ. जस्ट राइट इट डाउन. हैदराबाद, आई एम फ्रॉम गुलबर्गा बाय द वे, मैं बता देता हूँ. ओके, कलबुर्गी, नांदेड़, हमजा तुम भी हैं. हैदराबाद, गुलबर्गा, हैदराबाद गुलबर्गा सब डेक्कन के ही है ना बाय द वे. महबूब नगर एंड व्हाट एल्स, कम ऑन. हैदराबाद मेजॉरिटी, हैदराबाद. हरीश वरीश तो खाए होंगे सब ऑलरेडी, चल ही रहा होगा. और लॉकडाउन की तरह परेशानी चल रही होंगी. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज फूड. फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन हाँ, खाना इंपॉर्टेंट है. बोलेंगे भाई नहीं खाना है, बिल्कुल खाना है. सहरी करना चाहिए, सहरी में बरकत है, डोंट स्किप द सहरी. बट कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहली चीज ओवर ईटिंग से बचना है. राइट इट डाउन. ओवर ईटिंग नहीं करना है, स्पेशली इन इफ्तार. ये खा लिए, समोसा खा लिए, भजिए खा लिए, दही बड़े खा लिए, फ्रूट चढ़ा. दैट्स कंट्रोल योरसेल्फ. नो ओवर ईटिंग. रमजान इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल. एट द मोमेंट इफ्तार होते पूरा सेल्फ कंट्रोल खत्म. व्हाट्स द पॉइंट, राइट? सेल्फ कंट्रोल. ओवर ईटिंग नहीं करना है. और फिर मैक्सिमम अवॉइड ऑयली फूड एंड अनहेल्दी फूड. प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है. ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगरी फूड, इसको भी जो ना अवॉइड करना बहुत जरूरी है. दिस इज द टाइम जब आप अपने फास्टिंग के बहुत ज्यादा साइंटिफिक हेल्थ बेनिफिट्स में टाइम नहीं है उसको लेने के लिए. बट वन ऑफ देम इज आपके लीवर को जो ना रेस्ट मिलता है, और लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स रहते हैं जो ना वो क्लीन होते हैं. योर इम्यून सिस्टम एक्चुअली बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस फास्टिंग. लेकिन ये अनहेल्दी अगर हम काम करेंगे तो बॉडी जो है ना, कई लोग रमजान में वेट गेन कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली. अल्हम्दुलिल्लाह, तौफीक मिन अल्लाह. इस रमजान में जस्ट वांट टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस ताकि आपका जो ना और इसमें कॉन्फिडेंस बिस्मिल्लाह बढ़े. स्ट्रिक्टली, आई मीन वेरी स्ट्रिक्टली, इफ्तार मेरे लिए इज ओनली फॉर फ्रूट्स एंड इवन खीरे, गाजर वगैरह, खजूर, तरबूज और पानी, मैक्सिमम जो है ना टैंग वगैरह. सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नो ऑयली फूड. सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी ओकेजनली ऑफ कोर्स. सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तौफीक मिन अल्लाह, विद इन द फर्स्ट 10-12 days I lost 4 kgs. 4 किलो वजन लूज हुआ. And not that I'm feeling weak, I'm feeling more strong, I'm feeling more healthy. और वो पेट डिस्टर्बेंस, सुबह उठते मरोड़, and all this gases and all disturbance, everything's gone. It's like very relaxed, healthy body, feeling slim and trim, and it's like you're acting on the sunnat also. No overeating. और रात में कुछ दूध वगैरह लाइट, और ओनली वन टाइम सहरी में जो है ना, एक टाइम का जो है ना खाना बस. इसको एक दिन आप आजमा के देखें एंड यू विल सी द रिमार्केबल चेंज इन योर लाइफ. और इबादत में कैसा जो है ना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा बिस्मिल्लाह. सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एक सवाल है, कैन वी ईट वाटरमेलन? यस ऑफ कोर्स. रोजे में नहीं, इफ्तार में. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप रूटीन, स्पेशली गाइस फ्रॉम हैदराबाद, माई सेल्फ इंक्लूडेड. अल्लाह मुतकल्लिम खैरुम मिनल मुस्तमीन, कहने वाला सुनने वाले से बेहतर नहीं. व्हाट हैपेंस इज रमजान मींस रात भर जागना और सुबह में सोना. कई लोग तो जो है सहरी भी स्किप कर देते हैं, और बास तो सुबह इतना लंबा सोते हैं कि उनको जो है ना जोहर के लिए या असर के लिए इतनी मुश्किल से उठते हैं जैसा कि जो है फजर के लिए उठे. मुश्किल से घर में जो है ना अम्मी उठा रहे, उठो बेटे नमाज तो खत्म हो रहा, उठो, क्या ऐसे क्या रोजा है, नमाज चली जा रही. बात तो जो है ना असर में उठ रहे, 2 घंटे का रोजा है, असर में उठे 1 घंटे में जो है ना इफ्तार. अल्लाह, ये क्या रोजा है आपका? सो द पॉइंट, देख हमजा, फैंटास्टिक पॉइंट. अलार्म जो है ना जोहर के लिए लगा रहे हैं, क्या मामला है यार. तो इस तरीके से जो है ना स्लीप रूटीन, रात आराम के लिए, नाइट इज फॉर जो है ना स्लीपिंग इज फॉर रेस्ट. सो मैक्सिमम जो है ना 12 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock स्लीप. गेट अप एट 3:30, 4 o'clock. 1 घंटे का जो है ना आपको टाइम मिलेगा. तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, वितर भी नमाज, फिर उसके बाद सहरी, एंड देन मॉर्निंग में अनदर 4 hours, 3 hours. फैंटास्टिक. यू कंप्लीट आपके जो है 7 से 8 घंटे जो है ना कंप्लीट हुए. 6 hours शायद हर एक के लिए काफी नहीं रहेगा. बास को ज्यादा होना है, तो मुझे खुद 8 घंटे होना है. सो आई प्लान बाई 11 or 12 मैक्स एंड गेट अप एट 4, और फिर मॉर्निंग में 3-4 घंटे. तो उस तरीके से जो है ना स्लीप रूटीन इज इंपॉर्टेंट, स्लीप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एनी क्वेश्चन ओवर हियर?
Any doubts how to get 8 hours of sleep in Ramzan? I can get only I only get 4 to 4.5 hours between Tarawih and Sehri. हाँ तो डे टाइम में आपको शायद कवर अप करना होगा उसको समवेयर, और जो है ना पावर नैप भी आप ले सकते हैं. वर्किंग है अगर ऑफिसेस में काम करना, डेफिनेटली इट्स चैलेंजिंग. तो डे टाइम में या फिर जो है उसको पावर नैप इज वेरी इफेक्टिव. सुन्नत भी है खैलुल्लाह जिसको जो है ना कहते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव होती है. डेफिनेटली आई एम टॉकिंग फ्रॉम बिजनेस वालों के पर्सपेक्टिव से बात करूं, फॉरगिव मी फॉर दैट. तो वर्किंग है इट्स अ बिट चैलेंजिंग डेफिनेटली. ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करना जरूरी है. यस यू हर्ड इट राइट, रमजान में भी एक्सरसाइज करना जरूरी है. Physical activity is important. It releases endorphins. और you feel more energetic. और खाली पेट के टाइम का, ऐसा नहीं कि इफ्तार करके जो ना आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. Empty stomach, you know, just like half an hour, 1 hour before iftar. और ज्यादा नहीं करना है. Just for 15 minutes, 10 to 15 minutes, you know, light aerobics. स्किपिंग कर लें या ठहरी जगह पे जो ना जॉगिंग के जैसा करें. एरोबिक जो स्कूल में हम करते थे बचपन में या अभी भी करते हैं, एरोबिक एक्टिविटीज जो ना आपको करना है. ये ट्रेडमिल है तो उस पर जो ना आप भाग लें. लाइट एक्सरसाइज 15 मिनट्स मेंटेन करें, अमेजिंग जो है ना आप चेंज महसूस करेंगे. वो एकदम थकान जो होती है ना बैठ बैठ के, वो आप नहीं होगा इंशाल्लाह. तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से, दूसरी चीजें तो हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज और तहज्जुद है, तरावी वगैरह, इसकी अहमियत अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं. वन लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ टू कंप्लीट दिस प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट, वो एक जो है इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन्नमल अमालु बिन्नियात. अपने आप को बार बार रिमाइंड करें कि कॉन्शियसली आप ये सोचें कि भाई आप रोजा रहना, बी वेरी कॉन्शियस. सहरी का टाइम है, अज़ान से पहले या अज़ान के टाइम, सहरन के टाइम, सोचें कि अल्लाह की रजा के लिए जो ना आप जो है ना रोजा रह रहे हैं. और you will stay away from the bad habits. You will inculcate the good habits. बुराइयों से जो है ना आप दूर रहेंगे. अल्लाह के जो है ना अल्लाह की खशियत अपने अंदर जो है ना सो क्रिएट करेंगे. तक़वा जो है अपने अंदर पैदा करेंगे. सो बी कॉन्शियस. क्या होता है कि एकदम इबादत की क्वांटिटी जो है ना बढ़ाई जाती है रमजान, और क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते क्या क्वालिटी लूज हो जाती है. क्वालिटी जब लूज होती है तो पर्पस डिफीट हो जाता है. शैतान ये करता है, उसकी स्ट्रेटजीज में से नियत को बार बार जो है रिमाइंड रिवाइज करते रहे कि नियत अपनी जो है ना ये अल्लाह की रजा के लिए करो. तरावी पढ़ो अल्लाह की रजा की, नमाज पढ़ो अल्लाह की रजा की, रोजा रह रहा हूँ अल्लाह की रजा की. जो भी आप कर रहे हैं अल्लाह की रजा के वास्ते जो है ना आप ये काम कर रहे हैं. बार बार अपने आप को जो है ना रिमाइंड करते रहें और फोकस ऑन क्वालिटेटिव रादर देन क्वांटिटेटिव. 30 रकात बगैर खुशू से पढ़ने से बेहतर ये है कि 8 रकात पढ़े लेकिन खुशू है उसके अंदर. खुशू इज मोर इंपॉर्टेंट. उसके अंदर वो क्वालिटी रहे, उसके आप जो ना खशियत से जो ना वो काम को करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो मॉडरेशन में जो ना काम होना चाहिए, एतदाल, ताकि ये काम जो हम कर रहे हैं ना ये रमजान के बाद भी हमारे हैबिट्स बन जाए. अगर आप एक्सेस अप करेंगे तो फिर रमजान के बाद वो हैबिट नहीं रहेगी. यू विल सैचुरेट. और बहुत सारे लोग ऑलरेडी वो फेज से गुजर गए. रमजान के स्टार्ट में एकदम अरे जोश में सब कर रहे हैं. 5 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर आप देखिए मसाजिद भी खाली हो जाती, हवा निकल जाती, फिर बैक टू स्क्वायर वन होके अपने पुराने आदतों में, पबजी में, मोबाइल में, टिकटॉक में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में जो ना लग जाते हैं. इससे जो है ना हमको बचना है. एतदाल और मॉडरेशन में करना है. और इसके साथ साथ जो है ना वर्किंग है तो वो आप वो भी मेंटेन करना है. स्टूडेंट है तो वो भी आपके लिए जो है ना इबादत है. नीयत को अच्छी रखना है अपनी. तो पढ़ाई भी कर रहे हैं वो भी आपके लिए इबादत है. घर के काम कर रहे हैं वो भी आपके लिए इबादत है. माँ बाप की बात सुन रहे हैं वो भी आपके लिए इबादत है. और फिर वो इबादत हमको मालूम ही है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान वगैरह, वो इबादत तो आप कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. एनी क्वेश्चंस, गो अहेड. और अगर नहीं है तो देन वी विल जंप टू अवर टॉपिक ऑफ पैंडेमिक और कोविड वगैरह जो चल रहा है अभी हालात में. ओके, एक पॉइंट है, यस पावर नैप्स आर वेरी रिफ्रेशिंग, जज़ाकल्लाह खैर. ये प्राइवेट में है तो मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ. हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन एनीथिंग, सैयद शाद, वेरी गुड क्वेश्चन. कंसिस्टेंट होने के लिए आपको क्या करना है कि यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल. आप बोलेंगे भाई मैं तफसीर की आदत डालना चाह रहा हूँ, ट्रांसलेशन से कुरान की आदत डालना चाह रहा हूँ. एक दिन में आप एक पारा पढ़ते जो ना उसका फिर आप 10 दिन तक नहीं पढ़ते. स्टार्ट विद स्मॉल. हदीस में आता है, मफहूम है कि अल्लाह ताला को अमल बहुत ज्यादा पसंद है जो भले छोटा हो लेकिन उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी हो, कंसिस्टेंसी जिसके अंदर हो. तो स्टार्ट विद स्मॉल, मेंटेन इट, क्रिएट अ हैबिट एंड देन ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कोई अगर टाइप में पूछना चाहते हैं गो अहेड, या अगर कोई वर्बली पूछना चाहते हैं गो अहेड, अनम्यूट करके पूछें. अदरवाइज देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. अनदर 15-20 मिनट्स में उसको हम ये करते हैं.
How to avoid being awake at night? Very good question. सुबह में जल्दी उठिए. अगर जो है ना आप सुबह में 2 बजे तक सोएंगे तो रात में नींद आने वाली नहीं है, तो सुबह जल्दी उठना है. पॉइंट नंबर 2, एक्सरसाइज करना है. ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 3, स्क्रीन टाइम, दैट इज मोबाइल टीवी वगैरह से दूर रहना है. ये स्क्रीन टाइम जो है ना हमको नींद से दूर करता है. नींद नहीं आती इससे, नींद भाग जाती. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. What should we eat instead of the traditional iftars? Very good question. तो ट्रेडिशनल इफ्तार से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वही अपने जो है ना समोसा, पकोड़े और हलीम वगैरह ऑयली आइटम्स. तो उसके बरखिलाफ गो विथ नेचुरल फूड्स, यू नो, नेचुरल, अनप्रोसेस्ड, अनशुगरी, नॉन ऑयली. आई होप दैट सम्स इट ऑल, है ना. तो उसमें आगे आपके फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स में जैसा आपके खीरे गाजर है, फ्रूट्स में तो ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर. और फिर यू नो पानी है. कई वक्त हम पानी छोड़ देते हैं इतने चीजों पे जो ना खाने के लिए पानी कोई छोड़ देते. पानी है, ड्रिंक वाटर. और सो दीज आर दी हेल्दी स्टफ. कीप इट नेचुरल, यू नो, इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल. आप देखिए, आप करके देखिए इंशाल्लाह. How to balance, what is the best time for exercise in Ramadan? Very good question. It is, अगर आप सुबह में यानी 4 बजे से उठ रहे हैं तो that's a good time, एक 10-15 मिनट कर लेना. और otherwise around, you know, एक half an hour, 1 hour before इफ्तार. क्योंकि एक्सरसाइज के बाद हम जरा थकान प्यास महसूस करते हैं, तो इफ्तार से जस्ट पहले करें तो हमको एक मोटिवेशन रहता, अरे चलो अब इफ्तार का टाइम आ रहा, पानी वानी पी ले सकते, खा सकते हैं ना. सो दैट विल बी देयर. सो दैट इज अनदर गुड टाइम. बट भरे हुए पेट में खतई नहीं करना है, ये ध्यान में रख लीजिए. खा पी के मस्त इफ्तार दबा लेके या जो ना डिनर हेवी करके उस पर डकार लेके अब आप निकल रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, दैट इज एब्सोल्युटली द वर्स्ट टाइम टू डू इट. हाउ टू बैलेंस स्टडीज एंड कुरान? माशाल्लाह, वेरी गुड क्वेश्चन. अब आप देखिए, आपको आप बेहतर जानते हैं एग्जाम्स करीब हैं तो स्टडीज इज आल्सो इम्पोर्टेंट. नहीं है तो जो है ना आप दोनों में जो है वक्त बैलेंस कर सकते हैं. कुरान भी आप जो है ना पढ़िए. पढ़ाई भी इबादत है, मैं जैसे बताया ना, पढ़ाई भी इबादत है. नियत सही रखना है हमको. तो यू हैव टू डिसाइड अब आपको क्या पढ़ना है. मुझे मालूम नहीं है आप ग्रेजुएशन में है, स्कूल में है, कॉलेज में, व्हाटएवर, वो हिसाब से यू हैव टू सी. Sheikh Asad, how to balance studies and grow to? I think ये point cover हो गया. What is better to complete in Ramadan? 2 Quran or complete tafsir? What a beautiful question. Private में आ रहे हैं questions. तो I would say कि एक आयत माने के साथ पढ़ना और जिंदगी में अमल में लाना is better than reading the whole Quran, लेकिन उससे कुछ भी नहीं समझना. Yes. कुरान आया है समझने के लिए. वरतिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर कर उसको जो ना पढ़ो. अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या आप कुरान के ऊपर गौर फिक्र नहीं करते? ये कुरान गौर फिक्र करने के लिए आया है. ये कुरान तदब्बुर व तफक्कुर करने के लिए आया है. ये कुरान उलुल अलबाब के लिए है. ये कुरान उलुल नुहा के लिए है. ये अकल रखने वालों के लिए कुरान है. कितने मुकामात से कुरान पे है. अकल रखने वालों के लिए कुरान है. ये कुरान जो है ना सोचने समझने वालों के लिए है. अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं है? क्या तुम सोचते नहीं है? तो ये कुरान गौर व फिक्र, तदब्बुर व तफक्कुर करने के लिए आया है. सिर्फ जस्ट रीड आउट जो हम तिलावत बोलते हैं ना, इसके लिए नहीं है. सॉरी गाइस, इट इज लाइक एज सिंपल एज टैबलेट. में तो आपको बताता था कि भाई डॉक्टर बोला कि भाई आपको बुखार है ना, भाई ये गोली खाओ. आप ये गोली लेके बोले दिन में 3 मरतबा पैरासिटामोल खाओ. क्या प्यारे अंदाज में बोले, दिन में 3 मरतबा पैरासिटामोल खाओ. क्या वो आदमी का बुखार कम होने वाला? क्या वो उसकी जो है ना तबीयत ठीक होने वाली है? सुनने वाले बोले, क्या बोलेंगे सुनने वाले? बे पागल, कितनी अच्छी आवाज में पढ़ रहा, सही है, लेकिन वो गोली खाओ. वो गोली खाए तो जो है ना तबीयत ठीक होने वाली है. ये कुरान शिफाउल लिमा फी सुदूर है. दिल के बीमारियों को दूर करने वाली जो है किताब है. शिर्क से दूर करने वाली किताब है. दिल को साफ करने वाली जो है ना किताब है. तदब्बुर से तकब्बुर से दूर करने वाली किताब है. बुराइयों से दूर करने वाली जो है ना किताब है. गीबत से दूर करने वाली किताब है. अल्लाह से करीब करने वाली किताब है. जिंदगी को तब्दील करने वाली किताब है. ये पूरा महीना इसलिए मुबारक हो क्योंकि रमजान में कुरान नाजिल हुए. इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका. ये मुबारक रात में, इस महीने में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र. ये महीना इसलिए मुबारक हुआ क्योंकि ये कुरान नाजिल हुई. और जो है ना उसको छोड़ के हम जो है ना सिर्फ उसको करके कर ले रहे हैं, समझ रहे नहीं, अमल नहीं कर रहे, तदब्बुर नहीं कर रहे, तफक्कुर नहीं कर रहे, तो कहां से जिंदगी में तब्दील आने वाले? सो द बेस्ट थिंग इज रीड कुरान विथ अंडरस्टैंडिंग. समझो उसको, अमल करो उसको.
اس کے کام کو پھیلاؤ, اس کے میسج کو پھیلاؤ لوگوں تک. That is more important. I would say one page with tafsir is, with translation, with tafsir, with implementation is much better than finishing the whole para without understanding one simple word. All right. Okay, so many smileys. Any other question? How to keep ourselves fit in Ramzan? I think ये question हम cover करें, exercise, diet वगैरह ना, पूरे चीजें, sleep उसमें cover हुए. Another question, just after exercise, suhoor and iftar, isn't it bad for health? Yes, of course it is bad for health. Your question has the answer. How can we complete 3-4 Quran in Ramzan between studies? एक सवाल आया है, already I think इसका आंसर हो गया है, हमको जो ना मिल गया है. Any other point? Come on. What to eat in iftar? भाई मैं आपको टाइप करके देता. What to eat in iftar आपको मैं ऑलरेडी बता दिया इसमें, और हमारे प्रोडक्टिव रमजान के ऊपर ये टॉपिक पे वीडियोस हैं इंशाल्लाह, मेरे चैनल पे आप लोग बिइज़्निल्लाह देख सकते हैं उसको. और what to eat to be healthy? प्लीज 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 भाई, इतने बार रिक्वेस्ट करे, मैं नहीं कैसा बोलूं, मैं बार बार बोला कि प्रोसेस फूड से दूर रहिए, और जो है जिसमें हाई शुगर है वगैरह चीजों से, ऑयली चीजों से दूर रहें, और वही चीज खाइए जो नेचुरल है, हेल्दी है. फ्रूट्स को स्टिक करें, सिंपल. उसमें शेख असद, प्लीज मेंटेन सिंपल फ्रूट्स, दैट्स इट. हाँ, ठीक है. विद दैट सेड, आई होप we are done, right, with the productive part, with the productive Ramzan aspect. Done. Any other question? Any other question? शेख असद, आपके पूरे सवालात हो गए ना? What is the name of your channel? ठीक है, ये अब्दुल मन्नान लाइफ कोचिंग में टाइप कर देता हूँ. अब्दुल मन्नान लाइफ कोचिंग, ठीक है. अगर कोई है तो टाइप कर सकते हैं, तो कर दीजिए प्लीज हमारे चैनल की लिंक. ओके, तो विद दैट सेड, अभी हम जो करंट हालात चल रहे हैं, एक अजीब व गरीब किस्म का जो है ना एक बीमारी चल रही है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, अनप्रेसिडेंटेड. तो इसके बारे में पहले तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैं कुछ वक्त पहले हमारे वालिद साहब से, ही इज लाइक 70+, उनसे पूछ रहा था कि अबू, आप आपकी जिंदगी में, यू नो, लाइक लास्ट 70 years, हैव यू सीन एनीथिंग सो अनप्रेसिडेंटेड, कि इतने खतरनाक इस किस्म के एपिडेमिक और पैंडेमिक? अबू बोले, नहीं, आई हैव नेवर एवर सीन इन माय लाइफ. दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक लास्ट 70 years में तो नहीं हुआ है, उससे पहले शायद हुआ होगा, वल्लाहु आलम. सो द पॉइंट ओवर हियर इज कि ये है क्या? सबसे पहली चीज, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम. जो मुश्किलात, जो आजमाइश, जो टेस्टिंग पीरियड्स आते हैं, वो इंसान के अपने करतूतों की वजह से. ये हमारा अपने बिहेवियर है. अल्लाह को जो ना हम भूल गए थे, नमाजों को हम छोड़ दिए थे, कुरान को हम जो ना छोड़ दिए थे, अल्लाह को हम छोड़ दिए थे, दावत के काम को हम छोड़ दिए थे, गैर मुस्लिमीन तक ये अल्लाह के कलाम को हम जो ना नहीं पहुंचाए, और ये जो ना हालात आ गए. नाउ दिस सिचुएशन इज बीइंग फेस्ड. अब ये वक्त है तौबा का, अब ये वक्त है अल्लाह को रुजू होने का. रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह को पलटना है, माफी मांगना है, तौबा व इस्तगफार करना है. हमारे कितने गुनाह हो गए कि ये मार आई, एक मार आई लास्ट ईयर, फिर भी जो है ना हम उसको छोड़ दिए, यानी उसके बाद भी हम नहीं सुधरे, कि दूसरी मार है, दिस इज अ सेकंड वेव. क्या खतरनाक. आप देखिए, आंखों के सामने जो है ना अमवात हो रहे हैं, और हम इससे जो है ना बाहर नहीं. इंसान बेबस हो गया है. अरे हवा, ऑक्सीजन जैसी चीज, बेसिक नेसेसिटी, इतनी बड़ी नेमत जिसका एहसास नहीं किए थे, वो नेमत के लिए इंसान तड़प रहा है. पैसा फेंकने के लिए तैयार है, 10,000 20,000 रुपए एक एक सिलेंडर्स के लिए. रियलिटीज बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन अवेलेबल नहीं है. जो हम फ्री में टन्स एंड टन्स ऑफ ऑक्सीजन लेते थे, और एहसास नहीं था. ये ऑक्सीजन लेते हुए अल्लाह की नाफरमानी करते थे, ये ऑक्सीजन लेते हुए जबान से गाली निकालते थे, ये ऑक्सीजन लेते हुए शिर्क करते थे, ये ऑक्सीजन लेते हुए अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाते थे. क्या इंसान, क्या हमारा माजरा था. अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी फ़अफ़ु अन्ना, कसरत से दुआ करिए. दिस इज द टाइम फॉर रिपेंटेंस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तौबा व इस्तगफार का टाइम है. और फिर अब इस हालात में, अब मैं इसको थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच में जाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला. अल्लाह ताला मुझे इसमें आसानी फरमाए. वो है कि अब इन हालात में क्या करें. अब बात ये आती है कि सबसे पहले, अरे भाई ये थ्योरी बातें छोड़ो, प्रैक्टिकल और फिजिकल की बातें करो. लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, बीमारियां हो रही है. यस, वी विल टॉक ऑन दैट. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, एज मुस्लिम्स, ये बात ऑलरेडी आ भी गई है, प्रोडक्टिविटी में हम लोग अपना हेल्थ का ख्याल नहीं करते. नाउ इज द टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.
حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے, قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اوور ایٹنگ از اے ورسٹ تھنگ. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اوور ایٹ کرتے ہیں, یعنی اٹ از لائک وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے. یعنی the worst vessel to fill is the human stomach with food. It is not allowed. Overeating is haram in Islam, by the way. Overeating نہیں کر سکتے ہیں آپ. It's not allowed. پیٹ بھر کے کھانا ہے, پیٹ میں جگہ رکھ کے جو ہے نا کھانا ہے. اور پھر فزیکل فٹنس از ویری امپورٹنٹ, بیکاز یہ بیماری ایسی ہے جس کا امیون سسٹم ویک ہے, ان لوگوں کو اٹیک جلدی کرتی ہے. جن کو کوماربیڈیٹیز ہیں, جو شوگر ہے, بی پی ہے, اوبیسٹی, موٹاپا جن کو ہے, بہت جلدی ان کو اٹیک کرتے ہیں اور جلدی تباہ ہوتے ہیں. And old age also, of course. But so physically fit ہم کو جو نا ہونا ہے, physical fitness کو جو نا maintain کرنا ہے, activity, exercise, physical activity کو inculcate کرنا ہے. Because if you're physically fit, your immune system is strong. If your immune system is strong, COVID آئے گا بھی تو asymptomatic رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ. That is one point. And then now it's about mentally. Mentally جو ہے نا اپنے آپ کو fit رکھنا ہے with positivity. Negative news سے جو ہے نا دور رہنا ہے. Positivity کے اوپر زیادہ جو ہے نا فوکس کرنا ہے. ریڈ اباؤٹ پازیٹیوٹی, ریڈ پازیٹیو بکس, اسٹے اراؤنڈ وتھ پازیٹیو پیپل, ناٹ اراؤنڈ دوز جو صرف ڈیتھس کی جو ہے نا نیگیٹیوٹی کی بات کریں. اسٹے اراؤنڈ وتھ پیپل ہو ٹاک پازیٹیوٹی کے جو ہے نا لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں, کہ حالات سے لوگ جو ہے نا باہر بھی آ رہے ہیں, بیماری سے لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں. بی مینٹلی فٹ. وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم تو میں کوئکلی بول رہا ہوں یہ پوائنٹس. مینٹلی جو ہے نا آپ کو پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, پازیٹیو چیزیں پڑھنا ہے, پازیٹیو ویڈیوز دیکھنا ہے, اور پازیٹیوٹی کی جو ہے نا بات کرنا بھی ہے. ایموشنلی اسٹرانگ رہنا ہے. جلدی ویک ہو جا رہے ہیں, جلدی جو ہے پریشان ہو جا رہے ہیں, جلدی ہیبت کھا جا رہے ہیں. ایموشنلی یو شوڈ بی اسٹرانگ. پازیٹیوٹی کو جو ہے نا اپنی مینٹین کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت ایزی سولوشن وہ ہے کہ پازیٹیو جو اپنے لائف میں جو خوشحالی کی جو چیزیں ہیں اس کو احساس کرنا ہے, نعمتوں کو جو ہے نا کاؤنٹ کرنا ہے. یہ گریٹیٹیوڈ ایکٹیویٹی, رائٹ اٹ ڈاؤن ایوری ڈے 5 بلیسنگز کو جو ہے نا لکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ابراہیم میں, ابھی پرسوں اس کی جو ہے نا تذکرہ ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور اگر تم شکر گزار ہوگے تو ہم تم کو اور مزید وہ نعمت دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر ناشکری کریں گے میرا عذاب بہت شدید ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. شکر گزار ہوں گے, جیسی بھی صحت ہے, جتنا بھی پیسہ ہے, جو بھی ریسورسز آپ کے پاس ہیں, شکر گزار ہوئیے. اللہ تعالیٰ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور مزید جو ہے نا آپ کو وہ چیز دے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے جو اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرنے کے لیے. اینڈ دین another aspect, the fourth one is spiritually strong ہونا ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو ہے نا بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمارا جو ہے نا ایمان ہے, اللہ پہ ایمان رکھنا ہے, یقین, توکل. Do we really believe it? کیا ہمارا واقعی میں ایمان ویسا ہے کہ یقین ہے ہمارا, یہ صرف لسانی ہے, زبان سے جو ہے نا بس کہہ دیے ہاں اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے, لیکن جب حالات آتے جو ہے نا یو فال ڈاؤن, اب جو ہے نا کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ جو ہے نا پوروں کے اوپر جو ہے نا ڈومیننٹ ہوتی ہے. تو یہ ایمانی طاقت کو جو ہے نا اپنا بڑھانا ہے, یقین کو بڑھانا ہے, توکل کو بڑھانا ہے, اللہ کے اوپر ایمان کو جو ہے نا اور مضبوط کرنا ہے, توحید اس کو جو ہے نا اور مضبوط کرنا ہے, توحید خالص پہ جو ہے نا ہم کو آنا ہے, شرک سے جو ہے نا ہم کو بچنا ہے, وسائل کے اوپر وسائل کو استعمال کرنا ہے, اور لیکن وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا ہے, بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. وسائل کو استعمال کرنا ہے, بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. احتیاط ہم کریں گے لیکن بھروسہ اللہ پر کریں گے. ڈسٹینسنگ ہم مینٹین کریں گے, ماسک ہم لگائیں گے, اور جو فزیکل, مینٹل, اسپرچوئل, سائیکولوجیکل پوری چیزوں کو جو نا ہم مینٹین کریں گے, لیکن بھروسہ اللہ پر کریں گے, بھروسہ ان چیزوں کے اوپر نہیں کریں گے. یہ ہو گیا سیلف کے اعتبار سے. ناؤ نیکسٹ اسٹیپ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیا, آپ کے گھر والے اچھے ہیں, آپ کووڈ سے ریکور ہو گئے, فیملی ریکور ہوگی. واٹ اباؤٹ دوز پیپل ہو آر اراؤنڈ یو؟ ہیلپ دیم آؤٹ. فائنینشیلی کر سکتے ہیں, گو ہیڈ. کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں, گو ہیڈ. کھانا, کسی کو جو ہے آپ کچھ الفاظ بول کے, جو کچھ نرم الفاظ بول سکتے ہیں, سمپیتائز کر سکتے ہیں, ایمپیتائز کر سکتے ہیں, پازیٹیو ورڈز بول سکتے ہیں, ایمان کی بات کر سکتے ہیں, کریے. دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. یو نو اپولو ہاسپٹل سے مجھے کال آیا تھا رمضان سے جسٹ 2 دن پہلے. ٹنس اینڈ ٹنس, تھاؤزنڈس آف پیشنٹس ہیں ان کے پاس, جن کو جو ہے نا کاؤنسلنگ ہونا ہے, جو کووڈ میں ہیں اور جو ہے نا پریشان ہیں, جن کے گھر والے ان کے قریب میں نہیں ہیں, سائیکولوجیکلی جو ہے نا ڈسٹربڈ ہیں. You need just kind words. تو جس کو آپ کر سکتے کائنڈ ورڈز دیجیے. آپ کے پاس پیسہ نہیں, کچھ نہیں, سپورٹ کر سکتے, کائنڈ ورڈز, الفاظ دیجیے. وہ بھی نہیں کر سکتے, ان کے حق میں دعا کریے. Pray for them. Do what you can do best for them.
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. احسان کا معاملہ کرے جیسا اللہ نے آپ کے اوپر جو ہے احسان کا معاملہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر فضل کرے, آپ کی اچھی صحت ہے, یا آپ ریکور ہو گئے, فائنینشیلی اچھے ہیں ان حالات میں, لاک ڈاؤن وغیرہ میں, تو دوسروں کے اوپر جو ہے نا احسان کا معاملہ کریے. اینڈ اسٹارٹ وتھ یور فیملی, اسٹارٹ وتھ یور ریلیٹیوز. اپنے قریب کے دور کے رشتے داروں کو کال کر کے بات کریے, فیملی والوں کو کال کر کے جو ہے نا بات کریں, ایٹ لیسٹ فزیکلی نہیں مل سکتے, کال اینڈ ٹاک ٹو دیم, وائس کال جو ہے نا آپ کریں واٹس ایپ پہ, ان کو جو ہے نا سمپتھائز کریں, ایمپتھائز کریں, موٹیویٹ کریں, ایمان کی بات کریں, دعا کریں ان کے حق میں, ان کو جو ہے موٹیویٹ کریں, ان کو انرجائز کریں, بیکاز آل دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو ہیلپ. You know what? I'll tell you a true story. 5 months back, ہمارے پھوپھو کا انتقال ہوا, اور when she was like جب انہوں hospital میں تھے and she was on HFNC, high frequency oxygen, saturation was going down. ثم الحمدللہ, I have literally seen with my eyes, اللہ گواہ ہے کہ when at that moment ہم اور ہمارے رشتے دار, میں, ہمارے cousins اگر جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے, اور جب ہمارے پھپھو سے ہم لوگ قرآن کی بات کر رہے تھے, ہم لوگ ماسک وغیرہ پہن کے ان کے سامنے بیٹھ رہے تھے, وہ ہاسپٹل میں ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز الاؤڈ, سو وی ور ان سائڈ, یو نو شی واز لائک کووڈ پازیٹیو, اینڈ الحمدللہ ہم کو اپرچونٹی ملی, وی ور ان سائڈ ود دا ماسک اینڈ آل, اور ہم ان کے سامنے جو ہے نا بیٹھ کے دعا کر رہے تھے, اور ان سے جو ہے نا قرآن کی جو ہے نا تلاوت ہو رہی تھی. سبحان اللہ, سیچوریشن واز لائک 85 87, بڑھتے 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 86 87 88 90 91 92 93 94 95 تک جو ہے نا آنکھوں کے سامنے ہم دیکھیں کہ ان کا سیچوریشن جو ہے نا بڑھتے جا رہا ہے. بیکاز یہ تو قرآن کی طاقت ہے, شفاء لما فی الصدور. اور پھر الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کو جو نا سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. دل کو جب سکون ملتا ہے, باڈی کو انرجی ملتی ہے, اور پھر اس سے جو ہے نا ان کا immune system was getting stronger, and she was saturation was increasing in front of her eyes. This is not once, several times we have seen this. الحمدللہ ثم الحمدللہ, کہ جب she was like 1 month or around 20 days in the hospital, اور اس وقت finally اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا بلا لیے, and even in her like when she was semi and subconscious, she was still praying. سبحان اللہ, she had an amazing death. She was praying, ان کی انگلی جو ہے نا ہلتے رہتی تشہد کے لیے. تو this is what we have seen. تو یہ جو نا قرآن کی اسپرچولیٹی کی جو نا طاقت ہے. تو آپ اپنے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں, مورلی اسپرچولی ان کو جو ہے نا اسٹرانگ کریں, ان کے حق میں دعا کریں, اور ان کے ساتھ جو ہے نا یہ کلمات جو ہے نا کریے, یہ کہیے, قرآن ان کو جو ہے نا سنائیے, تلاوت کریے, یا پھر جو ہے نا اچھی تلاوت لگا دیجیے, اور ان کے حق میں دعا کریں, پازیٹیو موٹیویشن, ایمان کی بات کریے. ایمان کی طاقت ہے یہ, شفا الٹیمیٹ اللہ کے ہاتھ میں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کوئی بیمار ہے, مریض ہے, شفا دینے والا اللہ ہے. لیکن یہ ذرا ہے, these are the means. تو پھر اس طریقے سے جو نا ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو whether they are Muslims, whether they are not Muslims, آپ ان کو جو نا سپورٹ کریں. غیر مسلمین ہے, یہ دعوت کا بہت اچھا کام ہے. مسلمان ہیں, ان کو جو نا آپ سپورٹ کریں, اپنے خاندان والے ہیں, گھر والے ہیں, جس طریقے سے جو نا آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریے. اور پھر ایسے مشکل حالت میں, اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اگر کوئی قریبی رشتے دار کو جو ہے نا یہ سچویشن ہو جاتی ہے, یا پھر جو ہے نا وہ گزر جاتے ہیں, تو پھر اللہ کی مرضی پہ جو ہے نا راضی ہونا ہے. رضا بالقضاء, اللہ کی مرضی پہ راضی ہونا ہے. کہ قدر اللہ وما شاء فعل, یہ اللہ کی تقدیر تھی, اور اس نے جو چاہا اس نے کیا. یہ سب فالس باتیں, ارے فلاں سے جو ہے نا ان کو لگ گیا, ارے انہوں آ کے گھر میں ملے تھے رشتے دار, ان سے ان کو کووڈ ٹرانسمٹ ہو گیا, انہوں اگر وہاں نہیں جاتے تو جو ہے نا کووڈ نہیں ہوتا تھا. یہ سب بہانے ہیں. زندگی اور موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, یہ آلریڈی لکھ دیے گئے ہیں. وہ چیز صرف ریگریٹ, افسوس, حسرت کریٹ کرنے کے علاوہ اور کچھ فائدے کے نہیں ہے. وہ شیطانی باتیں ہیں. تقدیر پہ احتیاط کرنا ہے, میں اس کو انکار نہیں کرو, احتیاط کرنا ہے. لیکن when this happens, ultimately when death overtakes, and which it ultimately, yes it will overtake, ہر ایک کو اس سے گزرنا ہی ہے, جب مرنا ہی ہے, تو پھر اپنی تیاری کر کے جاؤ نا. I would say کہ turn this fear, اس سے ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فیئر کو جو ہے نا انرجی میں کنورٹ کریے. آپ کہ ڈر ہو رہا ہے کہ جو نا بھائی میرے کو کووڈ لگ جائے, ہو رہا ہے نا, انرجی میں کنورٹ کرو. ڈو یور میکسیمم, اپنی تیاری کر لو, اپنی آخرت کی تیاری کر لو, اپنی موت کی تیاری کر لو, اللہ سے ملاقات کی تیاری کر لو. بیکاز الٹیمیٹلی جب آپ کو جانا ہی ہے تو تیاری کر کے چلے جاؤ. when COVID has to come, when it is not leaving anyone, it is like you are dying. kullu nafsin zaiqatul maut, ہر کو جو مرنا ہی ہے, prepare for it and have a great death, have a good death, you know, have a fantastic. ایک مومن کی موت مرو, ایک شہید کی موت مرو,
कलमा पढ़ते हुए जो है ना मौत आनी है. So this is important. When this is coming, it is overtaking. Prepare for it. Turn your fear into energy. डरना नहीं है, बल्कि डर को जो है ना मैक्सिमम इस्तेमाल करके अपनी आखिरत बनाना है और अल्लाह को जो है ना राजी करना है. So this is the point जो है ना, जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था. इस कोविड में, इस पेंडेमिक और ये एपिडेमिक वगैरह जो चल रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ना महफूज रखे, और जो इस हालत में अल्लाह ताला उनको इससे जो है ना ये बीमारी से बाहर निकाले. अल्लाह ताला हम सबकी जो है ना मग़फ़िरत करे. मुबारक महीना है. अल्लाह ताला हम सबको ये बीमारी से जो है ना महफूज रखे, और ये बीमारी में जो भी मुब्तला है उनको उससे जो है ना बाहर निकाल दीजिए. हम सबके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर दीजिए. हमारे अंदर बहुत खामियां, बहुत कोताही, ये हमारे करतूत है अल्लाह ताला, ये करतूतों का हम खमियाजा भुगत रहे हैं. अल्लाह ताला हम सबको जो है ना माफ कर दीजिए हमको जो है. और जो हमारे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अब आप जो गुजर गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को जो है बुलंद कर दिए, बुलंद